Hello students, this is class 11th physics and today we are doing introduction of vectors. Okay, today we are studying about different kind of vectors, what is vector and what are the different kinds of vector. Okay beta, now we can start. So we know that there are two type of physical quantity. कितने टाइप की physical quantity होती हैं बेटा? Mainly हम दो टाइप की physical quantities लेते हैं. Okay, vector and scalar. Vector and scalar. Vector are having magnitude and direction. This is our main topic today. And scalar also we are studying in the previous chapter. Scalar which are having only magnitude. Okay beta. So scalar having no direction. Scalar are having only magnitude. Scalar के पास क्या होता है बेटा? Only magnitude होता है. For example, temperature, mass and speed. ओके वेक्टर्स वेक्टर आर हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन. लाइक अब इफ आई एम सेइंग स्पीड, स्पीड इज मान लो सपोज दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, देन दिस इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड but we are don't know the direction. But if I am saying velocity, then for velocity I am saying 5 meter per second in north direction. Then we can say the velocity is having magnitude plus direction. Okay beta. So now what is scalar? So suppose I am taking just an example. दिस इज द मास ऑफ ए गोल्ड बार. ये कोई गोल्ड की कोई भी मटेरियल है. सो मास यहाँ पे क्या है बेटा? एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड 1 kg इज व्हाट? 1 kg इज द मैग्नीट्यूड. सो वी कैन से मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. Okay, so there is no direction applicable at here. We are again taking an example. This is the example of temperature that I already tell you. This is the scalar. So this is a physical quantity and this is the value of the temperature, that is 36.8 degrees Celsius. Okay, this is only magnitude, there is no direction. Okay, so this is a scalar quantity. We are again taking an example. We know this is the length of the car. This is, suppose this is 4.5 meter. The length of the car is 4.5 meter. Okay, the length is the physical quantity and 4.5 meter is the magnitude. So basically आपको इतने examples में ये तो समझ आ गया होगा students कि what I want to say. I just want to say only one thing, that is scalar are having only magnitude, that is they are having some numerical value. Okay, no direction is there. Now these are the example of scalar and vector quantities. Vector quantities are displacement, velocity, acceleration, force and momentum. These are the scalar quantities students: distance, speed, temperature, mass, energy, time. As you know that all these quantities we are already explaining, so don't at here we don't need to explain. Our main topic is today only vectors, so we have to study broadly about only vectors. So students, this is by mistakes beta. What is vector? Okay, what is vector? Now the question is here, what is vector? तो vector को तो हमें बड़े अच्छे से पढ़ना है बेटा. So this is the symbol of vector. This is the symbol of vector. And this line is called magnitude. This line is called magnitude. And this is called tail. This is called tail. And this arrow is called head. Clear? And the theta is telling us direction. ठीक है, किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेस के साथ जो एंगल बनता है वो क्या बताएगा? उसकी डायरेक्शन बताएगा. क्लियर बेटा? आई रिपीट इट अगेन. दिस इज मैग्नीट्यूड, दैट इज कोई भी लाइन आप ऐसे एरो बनाते हो तो इस एरो का ये क्या शो करेगा आपको? ये डायरेक्शन. ये अपना हेड होता है. ये क्या होता है? अपना हेड. और ये क्या होता है? अपना टेल. ये क्या होता है? टेल. और ये क्या होता है? हेड. ठीक है, ये अपनी लंबी सी लाइन क्या है? मैग्नीट्यूड है. और ये किसको शो करेगा बेटा? अपना पूरा, ये जो पूरा सिंबल है किसका सिंबल है? वेक्टर का सिंबल. और जो थीटा है ये किसको शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है. तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट ए वेक्टर? सो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लेटर. ओके, विद एन एरो अबव इट. तो एक वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो जैसे हमने कोई भी लेटर लिया, मान लो लेटर ए ले लिया, इसके ऊपर आप एक एरो लगा दो, देन यू कैन से दिस इज ए वेक्टर. वेक्टर इसी साइड भी हो सकता है, दैट्स नॉट ए बिग डील.
अब डिस्क्राइबिंग ए वेक्टर, हाउ यू कैन डिस्क्राइब ए वेक्टर स्टूडेंट्स? सो कंसिडर ए ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने लिया 65 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो 65 एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या है, एक यूनिट है, और डाउन मतलब ये सारी डायरेक्शन ही तो होती है बेटा, अप डाउन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सारी क्या है आपकी डायरेक्शन है। तो इस ग्राफ को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो बेटा अगर आपको वेक्टर्स डिफाइन करने तो आपको डायरेक्शंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्लियर। तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ओके बेटा। तो ये डायरेक्शन, और हाँ बेटा फिजिक्स में आपको एक और ध्यान रखना है, जो अबव एंड बिलो वाली है, जो ये आपकी अबव एंड बिलो वाली डायरेक्शन है, ओके बेटा। सो अब हम ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अपनी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। सो अब ये क्या कह रहा है बेटा, अब आपको ये बता रहा है कि फिजिक्स में हमारे जो मतलब वेक्टर्स डायरेक्शंस होते हैं उनको हमें फ्रेम्स में लेना होता है। तो बेटा ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होता है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होता है। तो अगर आपको कोई भी वेक्टर लिया है तो वो कितना रोटेट करता है, ये हमारा क्या होता है, थीटा। तो अब ये बताओ, अपना राइट साइड गया है ना अब ऊपर की तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री अपवर्ड हो जाएगा। अब मेथड ऑफ कॉम्पोनेंट्स, तो द एक्स कॉम्पोनेंट आप देखो, ये क्या हमारा एक्स कॉम्पोनेंट होता है बेटा, ये अपना हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को शो करता है और ये हमारा वाई एक्सिस को शो करेगा, ठीक है। तो एक्स कॉम्पोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी ग्रीन लाइन है, और वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा हमारा पिंक लाइन, और जो ब्लू लाइन है ये क्या हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जो दोनों को सम अप करके बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब देखो बेटा, मैं आपको एक बार दोबारा से मैंने कहा था कि डायरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल रहेगा वेक्टर के अंदर। सो आपको डायरेक्शंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ साउथ है। बेटे डायरेक्शंस का आपका बेटे आपको इसलिए ध्यान रखना है कि डायरेक्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इवन आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि ये दिस इज अवर राइट लेफ्ट अप, आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, दिस इज राइट लेफ्ट up and down, these are also considered as direction, ओके। इनको भी डायरेक्शन कहा गया है इन द वेक्टर्स। अगर आपको फिजिक्स में मीन्स हम जब राइट लेफ्ट जाते हैं तो इनको भी डायरेक्शन कहा जाता है, ठीक है बेटा जी, ओके ठीक है। अब व्हाट इज वेक्टर, आई अगेन रिपीट इट प्रॉपरली, वेक्टर आर द क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड direction. If I am saying 35, then this is only scalar. If I am saying 35 is, then this is a vector quantity, because this is magnitude and this is direction. Like temperature, mass, these are the scalar quantities, and force, velocity, these are the vector quantities. Okay beta, now these are the example of vectors: torque, frictional force, gravitational force, deceleration by force, acceleration by force, ठीक है। So these are the example of vectors. So students, I already tell you, this is tail, this is head, this is the magnitude, and this arrow is showing direction. Okay, there are two ways to specify a vector. किसी भी वेक्टर को स्पेसिफाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से शो करेंगे, ओके, या इट इज़ गिवन बाय एक्स एंड वाई कंपोनेंट, क्लियर। ये हमारा है तो इसको मैग्नीट्यूड और थीटा लो, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द थीटा। तो ये तरीका है इसको स्पेसिफाई करने का। एक तरीका क्या, आप इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लो, यानी कि एक्स और वाई के फॉर्म में। तो ये हमारा वाई कंपोनेंट, ये हमारा एक्स कंपोनेंट। तो आप दो तरीके से इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका क्या आता है, एग्जाम्पल्स हम एक ट्राई कर लेते हैं। आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मेरे पास वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 7k, ओके। सो बेटा यहाँ पे देखो 2i माइनस जे प्लस 7k, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें वेक्टर्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k, दैट इज़ 2 स्केयर प्लस माइनस 1 का स्केयर, और ये 7 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 4 प्लस 1 प्लस 49, तो ये कितना हो जाएगा 54। तो 54 को अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 9,
और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3√6 आ जाएगा। ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर ऑन द बेसिक ऑफ इफेक्ट, हमें क्या करना है, पहले टाइप ऑफ वेक्टर बताने इफेक्ट के बिहाफ पे। तो पोलर वेक्टर हमारा, वेक्टर हैविंग स्ट्रेट लाइन इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। द वेक्टर्स विच आर हैविंग स्ट्रेट लाइन इफेक्ट, जिनका इफेक्ट कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन इफेक्ट होता है, उनको क्या कहते हैं, हम पोलर वेक्टर कहते हैं। लाइक डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनको हम स्ट्रेट लाइन से तो शो करते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये हमारे क्या है बेटा, सारे पोलर वेक्टर्स हैं। क्या है बेटा, पोलर वेक्टर्स। वेक्टर हैविंग रोटेशनल इफेक्ट आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। वेक्टर हैविंग रोटेशनल इफेक्ट आर कॉल्ड एक्सियल, मतलब जो रोटेट करते हैं, जो इस तरीके से होंगे, जैसे एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, मतलब जो रोटेशनल मोशन वाला इफेक्ट होएगा वो हमारे क्या रहेंगे बेटा, रोटेशनल वेक्टर रहेंगे। क्या रहेंगे हमारे, रोटेशनल वेक्टर रहेंगे। ओके। उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। हम ओरिएंटेशन के बिहाफ पे बताएंगे बेटा कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। इससे पहले हमने वेक्टर्स पढ़े हैं बेटा, बट किसके बिहाफ पे पढ़ा है बेटा, हमने इससे पहले वेक्टर अभी पढ़ा है ऑन द बिहाफ ऑफ अफेक्ट। ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के टाइप, किसके बिहाफ पे बेटा। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों को यही नहीं पता होता कि हम वेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं, बट किसके बिहाफ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो ये आपको अच्छे से क्लियरेंस होनी चाहिए कि आप वेक्टर्स को किसके बिहाफ पे कैसे डिफाइन कर रहे हो। ओके। चलो, इसके बाद आपका आता है बेटा ए वेक्टर, अगेन दिस इज ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर। सो वी इज ए वेक्टर, दिस इज वेक्टर वी एंड दिस इज वेक्टर माइनस वी। क्लियर। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए बी सी, तो ये तो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं बेटा, दो वेक्टर हम उसको पैरेलल कब कहेंगे, इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। अगर दोनों एक साइड जा रहे हैं तो दे आर द पैरेलल वेक्टर, चाहे वो इस साइड जाए चाहे वो इस साइड जाए। ठीक है। और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है बेटा, 0 होता है। उसके बाद आपका आता है बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर। उसके बाद आपका क्या आता है, एंटी पैरेलल वेक्टर। द वेक्टर आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन दैम वेक्टर इज 180 डिग्री। ओके। उसके बाद आपका आता है कोलिनियर वेक्टर। काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से करना है। सो द वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर एक्ट अलोंग ए सेम लाइन। देखो बेटा, को का मतलब क्या होता है, सेम, कॉमन। लीनियर का मतलब लाइन, जिनकी एक लाइन कॉमन हो। तो द वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर अगर वो एक कॉमन लाइन के लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि ये वेक्टर ऐसे जा रहे, तो लाइन एक ही है ना, एक ही लाइन के लोग चल रहे हैं ना, ये चाहिए इधर चले चाहिए इधर चले, बट जो लाइन है वो दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है नॉन कोप्लेनर वेक्टर। सो मतलब जो एक लाइन के अंदर काम ना करें। दो 3 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी नॉन कोप्लेनर इफ़ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। लाइक अगर मैं आपकी बात करूँ, दिस इज सपोज करो एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, तो बेटा दे आर नॉट कोप्लेनर। ओके। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट स्पेस। जैसे अपना बी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, तो ये डिफरेंट उसमें चले गए आपके, तो दे आर नॉन कोप्लेनर। उसके बाद आपका आता है बेटा इक्वल वेक्टर। क्या आता है आपका, इक्वल वेक्टर। टू पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, अब मान लो ये भी 2 न्यूटन है, ये भी मान लो 2 न्यूटन है, तो दे आर इक्वल वेक्टर बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड देखना, हमें डायरेक्शन नहीं देखनी, हमें क्या देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। क्लियर। So here you can see this is vector A, this is vector B and vector A is equal to vector B. This is vector P and this is vector Q and P and Q is equal, दोनों इक्वल वेक्टर, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। देन नेगेटिव वेक्टर, अभी मैंने आपको बताया भी था, इफ़ दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड then it is called equal vector if they are having same magnitude but direction are opposite। सेम डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर, मीन्स यू कैन से नेगेटिव वेक्टर। ओके। इसी डेफिनेशन है बेटा, छोटी छोटी डेफिनेशन से बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आपका आता है को इनिशियल, मतलब इनिशियल का मतलब होता है इसका एक पॉइंट कॉमन हो जाए, एक पॉइंट से निकलने वाले वेक्टर हो,
जैसे कि एक कॉमन पॉइंट हो गया ओ, तो इस पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर निकलेंगे। तो ये हमारा कैसे वेक्टर हो, जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर्स निकलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग said to be co-initial if they are have common initial point. If they are having common initial point, this is called co-initial vector. This is called co-initial vector. Three or more vectors are said to be coplanar if they are lie in the same plane. जैसे अब ये है कि पेज है पूरा एक ही प्लेन है, इसी के अंदर अगर सारे वेक्टर हैं इसी प्लेन के अंदर, आपको पता ही है बेटा दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो ये एक पूरा प्लेन, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ाती हूँ पूरी स्क्रीन भी क्या है बेटा, एक प्लेन है। अगर मैं इसी के अंदर सारे वेक्टर्स बना दूँ तो ये कैसे वेक्टर हो जाएंगे, कोप्लेनर, अगर एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं। देन लोकलाइज वेक्टर एंड नॉन लोकलाइज वेक्टर, इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब ये पॉइंट फिक्स है, बाकी आप इसको किधर भी घुमा लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर। इट इज दैट वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट आपका फिक्स नहीं होता, उसको हम बोलेंगे फ्री वेक्टर। मतलब हो सकता है कि इधर से निकल जाए, एक इधर से निकल जाए, इधर से नहीं, मतलब इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, कहीं से भी निकल सकता है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। बेटा एक बात तो हमेशा याद रखना, जो पोजीशन वेक्टर हमारा, अब मान लो ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने कोई भी बी वेक्टर रखा हुआ है, तो इसकी ओरिजिन से हमेशा पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से लिया जाता है, ओरिजिन से लिया जाएगा। कहाँ से लिया जाएगा, ओरिजिन से लिया जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हमें बताता क्या क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर हमें बताता है दैट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। जहाँ से भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, वहाँ से वो कितनी दूर है ऑब्जेक्ट, तो वो बताएगा। सेकंड ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और उसकी डायरेक्शन बताएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब ये वेक्टर पहले यहाँ था, थोड़ी देर में ये वेक्टर यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी है ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो बेटा, अपना जो ओ ए वेक्टर है, ओ ए वो क्या हमारा पोजीशन वेक्टर है, ओ बी क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर है, ओ ए भी पोजीशन वेक्टर है, और ओ बी, तो ये हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है। द पोजीशन वेक्टर ओ ए ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट प्रोवाइड टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो बेटा पोजीशन वेक्टर से हमें क्या क्या पता चलता है, एक तो हमें ये पता चल जाता है कि उस ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस है, एक हमें ये पता चल जाता है कि उसकी पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब मान लो टी टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ बी पोजीशन पे पहुँच जाता है, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी इसने कुछ टाइम कवर करा, और ये बी अब इसकी पोजीशन ये हो गई, ठीक है। पहले ये यहाँ बैठा था, अब थोड़ी देर में ये मान लो यहाँ आ गया, तो पहले यहाँ था अब यहाँ था, तो पहले इसकी पोजीशन क्या थी, ओ ए, अब इसकी पोजीशन क्या है, ओ बी। तो इनिशियल पोजीशन ओ ए, फाइनल पोजीशन ओ बी। अगर आपको ओवरऑल निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ए बी अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। अब उसके बाद देखो बेटा आप, तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर टेल इनिशियल पोजीशन एट ए एंड टिप इज द बी। ओके, ए से बी की तरफ चले, तो जब हम ए से बी की तरफ गए हैं, जब हम, मैंने अभी बताया था जब हम इधर से इधर गए, तो ये जो वेक्टर है ना वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ए बी अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जब हम डिस्प्लेस करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हम टाइम भी लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से कभी नहीं लिया जाता, ठीक है। वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं तो किस डायरेक्शन में गए हैं और कितना हमने पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है। मान लो आप इधर से इधर आ गए, आप इधर से इधर भी तो जा सकते हो, तो आपके पोजीशन में क्या चेंज हुआ है, आपने कितना टाइम लिया है वहाँ से वहाँ जाने में, और आप किस डायरेक्शन में गए हो, ये बातें आपको कौन बताएगा, ये बातें हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन बताएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो displacement vector is that vector which tell how much and in which direction an object changes its position in the given interval of time। तो यहाँ जो आपने डायग्राम देखा, यहाँ पर हमारा ओ ए और ओ बी तो क्या है, पोजीशन वेक्टर, और ए बी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से लेना है आपको, ओरिजिन से लेना है, ओके। और ये क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, ये सिर्फ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में काम करेगा, बट ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में काम नहीं करता है। ओके बेटा, समझ आ रहा है आपको,
ठीक है, अब उसके बाद हम एक बार दोबारा से इसको अच्छे से कर लेते हैं. ओके, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक बेटा. सो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन, हमने एक प्लेन लेना है, एक्स वाई हमारे पास एक प्लेन है. वी यूज द कंसेप्ट, तो हम क्यों यूज करते हैं इस कंसेप्ट को? टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन. क्लियर? अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक प्लेन में शो करना है, जैसे मान लो एक फर्श पे एक चींटी चल रही है, ये हमारे पास एक फर्श है, उस पर कोई चींटी जा रही है, तो अगर उस चींटी के मोशन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप किसका कंसेप्ट यूज करोगे? आप पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंसेप्ट यूज करोगे. तो व्हाई वी यूज पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन. वी यूज द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, सो फॉर दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी सिलेक्ट ए पॉइंट इन ए प्लेन एज ओरिजिन. सबसे पहले हमें ओरिजिन लेना पड़ेगा और पोजीशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन. ठीक है, सबसे पहले हमें एक ओरिजिन कंसिडर करना है और फिर उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी पड़ेगी. अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैंने एक कोई भी t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट को माना कि वो p पॉइंट पे है. क्लियर? तो p पॉइंट पे है बेटा. फिर क्या कह रहा है कि इन एक्स वाई प्लेन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देन ए वेक्टर ओ पी ड्रो फ्रॉम ओरिजिन. तो मैंने क्या करा है, कोई p पॉइंट पे है, यहाँ पे हो, तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया. ये p की पोजीशन बता रहा है मुझे, कहाँ से? ओरिजिन से. ठीक है, तो इट में भी रिटर्न है. अब मैंने मान लो इसको r1 मान दिया, इसकी उसको डिस्टेंस को. तो r1 इज द डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन p फ्रॉम द r1 क्या है हमारी? r1 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन. क्या है ये? p पॉइंट की डिस्टेंस बता रहा है यहाँ से o से. तो o से OP क्या हो जाएगा? r1 के इक्वल हो जाएगा. और r1 हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर है. अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ q पर आ जाए, तो अब डिस्टेंस क्या हो गई? OQ को मैंने क्या मान लिया? r2. तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये हमारी फाइनल पोजीशन थी. तो PQ क्या हो गई हमारी? PQ. तो PQ हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. PQ क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है बेटा, तो आई होप आपको सारा बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हैव ए नाइस डे. टेक केयर.